પણ અમને કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં મળતો. પીએસઆઈ સાહેબ એવું કહે છે સાહેબ હું હાથ જોડું છું આ દીકરીની 15 વર્ષ અમે ચૂપચાપ થઈ ગયા હતા એટલા માટે કે નહીં આવ્યા. સાહેબ હું હાથ જોડું છું કે જે વાત છે ને અહીંયા ચોખ્ખા શબ્દમાં વાત મારે એનાથી વાત નહીં કરવી મારે એટલા વાત નહીં એમના પરિવારજનો લઈ લો પરિવારને લઈ લો સાથે ચલો અમે મેટર ચાલતી હતી એક શબ્દ કીધું તો અમે ગુનેગાર અમે સાયલેન્ટ બેસી ગયા થાકી ગયા તો નીચે બેસી ગયા મેટર ચાલતી હતી અમે બેસી ગયા અગાઉ બી 324 એમાં પણ બહુ ભૂલ છે પોલીસની એમાં બી પણ કેમેરા તમે જોઈને કેટલા આરોપી બાકી છે અંદર એ તમે સાહેબ તપાસનો એક વિષય છે. તમને ખાલી મારી રજૂઆત સાંભળો. અમે ખોટા હોય સાહેબ તો અમારા ઉપર એક્શન લઈ લો અમે ખોટા હોય તો અમને નાખી દેજો અંદર બરોબર. તમે સીસીટીવી ના આધારે જે રીતે લોકોને આઈને માર્યું છે બરોબર 2 દિવસ પહેલા લોકોને વાત કરવાનું તો યાર મેં છોકરીને 2 દિવસ પહેલા આટલી બુરી માર મારી છે જે પુરુષે 15 વર્ષની છોકરી ઉપર આવી રીતે બાલ પકડીને એના બધાના ઉપર ફેંટો મારેલી છે. આટલી ગંભીર ઘટના છે પણ જેટલા આરોપી હતા એ લોકોને ખાલી 4 લોકોના નામ પોલીસે લખ્યા છે સાહેબ. બીજું આ છોકરી 15 વર્ષની છે પુરુષ એના જીસમ ઉપર હાથ લગાવે તો પોસ્કો હેડ ગુના દાખલ થાય છે. અમારી આની પર તપાસનો એક વિષય છે સાહેબ. તમારી તપાસમાં નીકળવું જોઈએ. અમારી આ માંગ છે. આ ત્રાસી કરીને આ છોકરી આટલી ત્રાસ ગઈ હતી કે એને આત્મહત્યા કરી સુસાઇડ નોટ છે અમારી જોડે. હા મળવા તૈયાર છે એનો પરિવાર સાથે મળવા તૈયાર છે. ઓકે સાહેબ અમે સાહેબ તમને પણ માનવતા માટે અમે હાથ જોડીને નમ્ર વિનંતી કરે છે આ નાની છોકરીને ઇન્સાફ અપાવજો. हम लोग 3 दिन पहले उन लोग ने बहुत मारे मेरे भाई को मारे मेरी बहन को 3 जेंट्सों ने 5-6 लेडीजों ने उसको झूठ बना के अलग ले जाके मेरी ये बहन को और वो बहन को लात जेंट्स ने मारे. दिनेश ने अरे वो तो गुना एचएम में दाखल किया था. એમનું કહેવાનું શું છે તમે કેસ લીધું તમે 22 કલાક આરોપીને 23 કલાક પણ કસ્ટડીમાં મૂકી બરોબર પણ એમનું કહેવાનું એવું છે કે ઘણા બધા લોકો સીસીટીવીના ફૂટેજની પેન ડ્રાઈવ પણ દેસાઈ સાહેબને આપી દીધી છે અત્યારે और सीसीटीवी ત્યાં લાગેલા છે. ઘણા લોકો એમાં મારવા વાળા હતા. एफआईआर में जो नाम थे सबको अरेस्ट कर लिया था उसी दिन कर लिया था और रात रख के जो भी जामीन लायक गुना था उसके मुताबिक कायदे के मुताबिक हमने उसको जामीन पे छोड़ा. अभी जो आपकी लड़की ने जो सुसाइड किया है जो भी वो मैटर पूरी अलग है उसकी भी हम जांच कर रहे हैं. अभी तो एक ही दिन हुआ है आज एफएसएल हुआ अभी उसकी भी जांच तो करेंगे ना भाई. आप बोल रहे हैं कि एक दिन में ये कर दो ऐसा नहीं होता. लॉ के मुताबिक कायदे के मुताबिक पूरी 100% सही तरीके से जांच होगी और उसी के मुताबिक हम काम करेंगे. वो गुने में भी अगर आप बोल रहे हो कि दूसरे आरोपी है तो वो भी आपके आप जो भी है आपके पास एविडेंस आप दे दो हमें सीसीटीवी. हम क्या मना कर रहे हैं निर्दोष का नाम नहीं लेंगे कोई भी सर. हाँ जो सुसाइड नोट है सर उसके आधार हमारी एफआईआर संविधान के हिसाब से हो सकती है. नहीं अभी नहीं हो सकती. वो एफएसएल में भेजेंगे जो भी कार्यवाही होगी लीगली होगी उसमें गुना बनेगा तो उसमें भी अलग से गुना दाखिल 100% करेंगे. अरे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है भाई. ये कोई हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है. हमारी फर्ज है हम लीगली काम करेंगे. उसको बहुत मिनटा उसने परेशान करा था गंदे इशारे करा था तो मेंटल इतना परेशान किया था तो पहले क्यों कभी अर्जी नहीं की बताओ. अरे જોધી કાર્યવાહી બરોબર સીસીટીવી પીએસઆઈ દેસાઈ સાહેબને અમે આપી દીધું છે પેન ડ્રાઈવ આપી દીધું છે બરોબર. એ પેન ડ્રાઈવમાં સંતોષ ના થાય તો એમના પડોશીના બીજા પેન ડ્રાઈવ પોલીસ જઈને લઈ લે બરોબર. બીજી વાત ને આ સુસાઇડ નોટના હિસાબે તમે કહો છો કે એફએસએલ ની બાદ એફઆઈઆર થશે રિપોર્ટમાં જે આવશે એ પછી તો એ 20 થી 40 દિવસની ગણતરી મૂકવાની એમાં તો એવું ક્લિયર તમને અત્યારે લગભગ 2 મહિના બી લાગે છે. એફએસએલ મને ખબર છે જે નોલેજ આપણે જે હશે લીગલ જ કરશું. કોઈ એવું નથી ભાઈ કે તમે કોને મારે કાર્યવાહી નથી કરવી કે ઇલીગલ કાર્યવાહી એવું બિલકુલ નહીં થાય. લોથી મુતાબિક આપણે જે કંઈ બી કાયદાકીય તત્વો છે બધું જ કામ કરશું. તમે બી લોમાં માનજો હું બી લોમાં માનીશ. અમે બી લો માટે તમારી જોડે રજૂઆત કરવા આવશે. ઓકે સર ઓકે ચલો.
आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के गोमतीपुर विस्तार में चौकसी की चाल में जिस तरह से कल की खबर आई थी वायलेंस की, इसके बाद शारदाबेन अस्पताल में सानिया ने अपनी जान गंवाई और उसके बाद आज परिवार के लोगों के साथ कहीं ना कहीं सोसाइटी के मोहल्ले के लोग भी इनके साथ जुटे हैं और जस्टिस फॉर सानिया के नारों के साथ गोमतीपुर पुलिस थाना में पहुंचे हैं। यहाँ के जिम्मेदार आमिर खान पठान से हम बात करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कल से इस मुहिम में जुटे हैं इनके साथ और न्याय दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर परिवार के साथ खड़े हैं। कैसे देखते हैं आमिर खान, आज आप गोमतीपुर पुलिस थाना में आए हैं और प्रूफ के तौर पर जो है सुसाइड नोट भी मिला है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए वो आसानी होगी कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए और किस तरह की तपास होती है और इस मामले में सही गुनहगार जो है उनको जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। जैसे कि आज रोज से 3 दिन पहले सामने वाले जो लोग थे और वो लोगों ने आकर इनके घर और परिवार के ऊपर हमला किया था, उसमें सानिया को बाल पकड़ के मारा गया था, सानिया को फेंटे मारी गई थी, कुछ मेल लोग थे, फीमेल लोग थे, वो लोगों ने मिलकर सानिया को मारा। ऐसी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, इसलिए इतना एविडेंस है और इतने कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ। ऐसे सीसीटीवी में देखा हूँ मैं भी, वही सीसीटीवी फुटेज हमने पुलिस को सौंपा है कि आप लोगों ने 4 लोग जो आरोपी बनाए थे, 4 लोग नहीं, उसके अंदर कुछ और आरोपी भी आएंगे, आप सीसीटीवी की फुटेज से तपास करोगे तो पुलिस ने आश्वासन दिया है, हम वो भी तपास करेंगे। दूसरा, सानिया की एक सुसाइड नोट मिली है, सुसाइड नोट के अंदर सानिया ने बहुत सारी चीज़ें दर्शाई है, उनके मकान के बारे में, जो इनके त्रास के बारे में नोट में दर्शाया है। एफएसएल वाले आज आए थे शाम को 7 बजे, एफएसएल के लिए और पीएसआई जो आए थे, जो एडी की तपास कर रहे थे, ऐसे पीएसआई देसाई साहब भी आए थे वहाँ पर। उसकी जो सुसाइड नोट थी, उसकी जो स्कूल की, जो कॉलेज की, जो भी पढ़ती थी, अभ्यास करती थी, बुक है, वो सारी चीज़ें, और जो पेन से लिखा गया था, ब्लैक पेन से लिखा गया था, वो पेन भी लेकर देसाई साहब गए हुए हैं। अभी सारे एविडेंस पुलिस ने लिए हैं। उसके बाद भी पेन ड्राइव भी हमने सीसीटीवी फुटेज का निकाल के दिया। उसके बाद अभी हम पीआई सर से बात की, हमको ऐसा लगा कि हमारी एफआईआर नहीं ले रहे, तो तमाम मोहल्ले के लोग, तमाम मेरे ग्रुप के लोग, तमाम आगेवान लोग साथ में आकर पीआई साहब से, राणा साहब से हमने बात की। राणा साहब ने आश्वासन दिया है जितनी जल्दी एफएसएल की तपास और जितनी जल्दी उसकी तपास क्लियर होते ही हम आरोपी को छोड़ने वाले नहीं हैं और कायदेसर की कार्रवाई करने वाले हैं, ऐसा हमको पुलिस इंस्पेक्टर ने हमको आश्वासन दिया है। तो हम भी पुलिस इंस्पेक्टर साहब का आभार भी मानते हैं और उनसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस 15 साल की बच्ची की तपास जल्द से जल्द हो और इस लड़की के परिवार को सुकून जभी मिलेगा जब उसको इंसाफ मिलेगा इन लोगों को। अभी फिलहाल परिस्थिति क्या है? परिवार के लोग उनके अपने घर में रह सकते हैं या अभी भी ये डरे हुए? परिवार के लोग तो अभी इनके घर में रहते हैं, क्योंकि भागता कौन है? जो गुनहगार होता है वो लोग भाग गए, विस्तार छोड़ के वो लोग भाग चुके हैं, घर बार बंद करके चले गए, क्योंकि गुनहगार ही हमेशा भागता है, सच्चा इंसान कभी नहीं भागेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं जो सरकार के होम मिनिस्टर साहब है, जो होम मिनिस्टर हरसंघवी साहब हमेशा कहते हैं जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। तो मैं हरसंघवी साहब से कहना चाहता हूँ, इस मासूम 15 साल की बच्ची आपकी भी बच्ची होगी, हमारी भी बच्ची है, कई लोगों की बच्ची होगी, इस बच्ची को इंसाफ मिले ऐसी इसकी तात्कालिक तपास हो। आप टेलीफोनी बात करें, डीसीपी साहब से बात करें, सीपी साहब से बात करके इस बच्ची को इंसाफ मिले, ऐसी मैं हरसंघवी साहब से भी मांग करता हूं और गोमतीपुर पुलिस से भी मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द तपास हो। अगर हमको कोई शंका लगेगी कि हमारी तपास को डिले करा जा रहा है तो उग्र आंदोलन भी करा जाएगा। चलिए, इनका परिवार के लोगों से बहन मौजूद है, कितना कुछ आश्वासन मिला है पुलिस थाना से और कितनी उम्मीद है न्याय मिलने की? सर ने बोले तो हैं जो भी कायदेसर कार्रवाई होगी, जो भी गुनहगार होंगे उनको वो पकड़ेंगे और इंसाफ हमको दिलाएंगे। अब यहाँ से उन्होंने आश्वासन दिया, अब हमें उम्मीद से जा रहे हैं कि मेरी बहन सानिया बानो को इंसाफ मिलेगा।
पड़ोसी के लोग भी अब साथ में आए हैं। हमारे मोहल्ले वाले, आजू बाजू वाले, पड़ोसी वाले सब मेरी बहन का साथ देने के लिए आए हैं। सबने साथ देने का वादा करे हैं कि जब तक मेरी बहन सानिया को इंसाफ नहीं मिलेगा हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो 15 साल की लड़की खुद की जान दे दी, उसने सुसाइड नोट लिख के चली गई, उनने सब गुनहगारों के नाम लिख दी। उसको जेंसों ने बहुत मारे, लिटा लिटा के उसको मारे। उसके दिनेश, मानव, दीपू, रोहित, मनीषा, उषा, सरला, सोना, बाया, मनीषा की बहन और सुसाइड नोट में भी ये सब के नाम है। और ये सुसाइड नोट में अगर आपको चाहिए, उसने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखी है कि हम 10 महीने से ये घर के लिए हम हैरान थे, पर ये घर के लिए हमको इंसाफ नहीं मिला। हमको घर में बहुत दुखी थे, 10 महीने से हमने घर में कोई खुशी नहीं मनाई। हमारा पूरा पैसा भी उन लोग ने ले लिए, हमको घर भी नहीं सौंपे। सुमन के घर वालों का और सब जो भी गुनहगार है वो सबको पकड़ो और हमको इंसाफ दिलाओ। हमको सख्त से जल्दी हमको इंसाफ दिलवाओ। हमारे गोमतीपुर से किसी का साथ मिला, कोई सामाजिक आगेवान आपके साथ? ये आमिर भाई है, ये हमारे भाई है। ये इनसे हमको उम्मीद मिली है कि अब हमारी बहन को और हमको, जो 11 महीने से हम इधर उधर धक्के खा रहे घर के पैसे के लिए, कि हमारा पैसा मिल जाए, हमारा पैसा मिल जाए। ये पैसा तो गया, मेरी बहन की जान चली गई। पर आमिर भाई ने हमको बहुत उम्मीद दिलाई, मेरी बहन को इंसाफ भी दिलाएंगे और हमारा जो पैसा है वो हमारे को पैसा भी पूरा हमको दिलाएंगे। चलिए, तो ये परिवार के लोग हैं, गमजदा हैं, नम आंखों के साथ गोमतीपुर पुलिस थाना में पहुंचे। आज जो है सानिया को सुपुर्द खाक किया गया। उसके बाद परिवार के लोगों ने इस मुहिम के साथ कदम आगे बढ़ाया कि गोमतीपुर पुलिस थाना में जाएंगे और सानिया को जस्टिस दिलाएंगे। अब तक तो लड़ाई में ये लोग, परिवार के लोग अकेले थे, आमिर खान उनके साथ लगे हुए थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं इनको जस्टिस और न्याय दिलाने के लिए परिवार के साथ साथ मोहल्ले के लोग भी जुड़े हैं। आने वाले दिनों में विस्तार के लोग भी इस मुहिम में जुड़ सकते हैं और जस्टिस दिलाने के लिए, सानिया को न्याय दिलाने के लिए आगे आ सकते हैं। मैं एक बार फिर वो असामाजिक तत्वों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अभी हमने फिलहाल कुछ ही दिनों पहले, मतलब कि कल या परसों में ही राखी के बंधन के दिन वो वीडियो देखे हैं जो सेंट्रल जेल पर अपनी बहनों की आंखों में आंसू थे और उन कैदियों को राखी बांधने जा रही थी। आप उस वीडियो को देखकर ही अगर जो है सीख लेते हैं कि हमें इस तरह के गुनाहों को अंजाम नहीं देना चाहिए। होता यह है कि परिवार के लोग भी परेशान होते हैं और सामने जो फरियादी पक्ष होता है वो लोग भी परेशान होते हैं। गृह मंत्री से, कमिश्नर साहब से कि ये भी आवेदन है हमारा कि ये भी कि हर पुलिस थाने की आप वीक में एक विजिट, एरिया के पुलिस थाना के लोग जो है एक वीक में एक विजिट जो है सेंट्रल जेल की भी होनी चाहिए। परिवार के लोग किस तरह से वहाँ मिलने आते हैं, किस तरह से धक्के खाते हैं, कैसे लाइनों में खड़े रहते हैं और कितने आंसू बहा के जाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें भी देख लेंगे लोग तो आने वाले दिनों में उन्हें हिम्मत जुटेगी कि हम जो है क्राइम को कम करने में बढ़ावा मिलेगा और ऐसे जो गुनाहित प्रवृत्तियों को अंजाम देने में लोग पीछे हट करेंगे, उनका मनोबल टूटेगा। तो आने वाले दिनों में भी देखा जाएगा सानिया को न्याय किस तरह मिलता है। लेकिन फिलहाल आमिर खान के साथ साथ परिवार के लोगों के साथ साथ मोहल्ले के लोग भी इस मुहिम में जुटे हैं और सानिया के लिए न्याय मांगने को आगे आए हैं। गोमतीपुर पुलिस थाना के पीआई ने आश्वासन दिया है, तपास आगे की तरफ बढ़ रही है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्त किया जाएगा। चांद मोहम्मद। क्या देखा आपने, कितने टाइम से जो है मारामारी और वायलेंस चल रहा है? ये बहुत टाइम से मारामारी चल रही है, तकरीबन 10 यानी लॉन्ग टाइम है हुआ, पर ये 2 दिन पहले ज़्यादा मारामारी हुई, एफआईआर भी हुई, उससे न्याय की मांग करी थी। उन लोग आए, लॉकअप हुई और वो लोग फिर वापस से छूट गए। तो मेंटली डिस्टर्ब होकर लड़की ने ये काम किया है कि बहुत ज़्यादा उसको मारा गया था, तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो इसके लिए क्या उसने ये कदम उठाया है। और सुसाइड नोट भी लिख के गई है उसने, सुसाइड नोट भी मिला है और हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। तो मोहल्ले के लोग भी कुछ गवाह हैं जो जिन्होंने ये मामले? हाँ, मोहल्ले के, ये मोहल्ले में ही रहते हैं। आप लोग देख रहे थे कि हाँ, ये सब है। हाँ है। क्या मांग है अब आप लोगों की न्याय? बस सर न्याय करें, हमारे वो न्याय की मांग है जो भी है। गोमतीपुर पुलिस स्टेशन से बस यही रजूआत है कि वो हमको न्याय दे, इंसाफ दे। मिदा बानो मेरा नाम है, मैं उसकी भाभी हूँ और पड़ोसन भी हूँ, बाजू में भी रहती हूँ। मैंने देखी उसको मारा गया, मैं छुड़ाने गई तो मुझे भी मारा गया। जल्द से जल्द न्याय चाहिए, उसको इंसाफ चाहिए बस। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।